अस्सलाम वालेकुम ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਬਿਸ਼ੋਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਮਾਨ ਰਹੂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹਾ ਅੱਛੇ ਹੋਸੋ ਵਾਲੋ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਠਾਣੇ ਆ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਕੇ ਜੀ ਬਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਇਹ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੈਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵਾਤੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਸਦਾ ਸੀ ਦੁਆ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੈਕੇजेस ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬੇਹੰਗਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪ ਨਿਕਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਹਨ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ से ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BRT ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਕਿ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਈਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਈਡਰਸ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ देखो इन्हों का इस हवाले क्या कहना अस्सलाम वालेकुम सर जी आपका नाम सर तनवीर अहमद अच्छा मुझे बताएं कब से ये काम कर रहे हैं और क्या मजबूरी थी कि आपने ये काम स्टार्ट किया सर मैं तकरीबन 1.5 साल हो गए ये बाइकें चला रहा हूँ अच्छा। और बस घर के हालात की वजह से क्योंकि कुछ बीमारियाँ थी कुछ परेशानियाँ थी और उसकी वजह से हम अपना रोज़ी कमा रहे हैं इस बाइक पे ठीक है और दूसरा ये है कि सर ये फ्यूल की वजह से हमें बहुत परेशानी है आजकल तो फ्यूल बहुत महंगा हो गया है और हमारा जो काम गुजारा घर का चल रहा था वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है तो सर अभी आप ये 1.5 साल से चला रहे हैं आपने बताया तो इन 1.5 साल में आपने मतलब मुख्तलिफ नौकरियों की कोशिश की है कि नहीं फुल टाइम ये कर रहे हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं ये फुल टाइम कर रहा हूँ सर मैं होटल का काम करता था बस होटल में ये है कि दिहाड़ी वगैरह थी वो कम मिलती थी टाइमिंग ज़्यादा थी 14-15 घंटे की ड्यूटी थी 1000 रुपये या 800 रुपये का वो काम लेते थे वो काम ज़्यादा होता था मुनाफा कम होता था फिर इस वजह से हम बाइकें में निकल आए अभी आप मुझे बताएं कितना घंटे आप चलाते हैं ये सर ये हम तकरीबन सुबह 8 बजे निकलता हूँ शाम 7 बजे तक 8 बजे तक लगा रहता हूँ सर अच्छा लगे रहते हैं और इसमें ब्रेक नहीं करते कोई क्योंकि बाइक पे रहना 8 घंटे ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों को शायद आसान लगता उसी गर्मी है बारिश है ये सब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते होंगे सर ये सर फेस करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है इस पर 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे बैठना कमर के लिए और हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है लेकिन अब मजबूरी है कि घर के हालात की वजह से हम लगे हुए हैं और ये आपको मतलब इतनी बचत हो जाती है लोग किराए देते हैं रेंट देते हैं कि नहीं लोग अभी भी मतलब इसमें आपको वो करते हैं यानी कस्टमर्स जो हैं वो तंग करते हैं सर कस्टमर पहले जो फ्यूल सस्ता था तो हमारा गुजारा हो जाता था और अब इस तरह है कि फ्यूल महंगा हो गया कस्टमर कम 200 रुपये बोलते हैं वो 100 रुपये का डिमांड करते हैं अच्छा और बाकी बस ना ले जाओ तो फिर मजबूरी है अब खड़े रहेंगे ठीक है
तो मतलब आप कम पैसों में भी कहते हैं चलें खैर है। कम कम से भी कम चला सकते यार, चलो 10 ये एक सहूलत भी है ना लोगों के लिए कि जो रक्शे में नहीं जा सकते या कि अगर इसके बदला अगर रक्षा करते हैं या बीआरटी में जाते हैं उनको महंगा पड़ता है, ये कम टाइम में आपको पहुंचा देते हैं। जी सर, ये कम टाइम में बंदा किसी ना किसी तरीके से किसी ना गली से हम निकल जाते हैं आसानी से, और कोशिश भी हम यही करते हैं कि यार कस्टमर को भी फ़ायदा हो और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। जी नाज़रीन, जिस तरह तुहाने इन्हां दी गल्लां सुनियां कि इन्हां दा ये कहना है कि खाली अगर पेट्रोल दी कीमत दोबारा पुरानी कीमत ते आ जाए तो बाद इन्हां दा ये जिहड़ा कम है इन्हां नूं इसी बचत होसी ते और महीने में कितनी बचत हो जाती है आप? महीने में सर ये कोशिश करते हैं कि दिन के हिसाब से हमें अब 1800 रुपये बच जाते हैं, लेकिन उसमें भी बाइक का काम निकल आता है। काम निकल आता है जी। चने मैं तमाम जड़े साढ़े अहदेदारान हुकूमती जड़े अहदेदारान उन्होंने को दरख्वास्त कर सके इन्हां वास्ते कोई रिलीफ पैकेज करो कि जो लोग ये लोग चलाते पे इन्हां वास्ते पेट्रोल की मद दे विचकार बाइक की मद दे विचकार इन्हां दी मेंटेनेंस दे विचकार कोई ना कोई इन्हां दी हेल्प हुकूमत नूं लाजमी करनी चाहिए। और इसके अलावा और लोगों को नाल भी गलकत करनी है, देखने कि उन्हां दा अज दे अपनी, क्योंकि हर बंदे की अपनी कहानी है, जे कहानी उन्हां दी अपनी जुबानी होवे तो ज़्यादा अच्छी। आओ और लोगों नाल गपशप लगाने। मैनू बताओ कितने टाइम से ये बाइकियां चलाते पे हो तो क्या कहानी है, क्यों चलाते पे हो, क्या वजूहत है? कम काज नहीं जी, लोहे काम करना कम काज नहीं गा हाला तो 4 महीने से चलाने पे हूं जी। हाला ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? जी बस प्रॉपर्टी रुकी है तो कम काज है नहीं है, लोग कोई कार मार वगैरह नहीं बढ़ाने तो बस गेट में किधर से बढ़ाऊँ, ठीक है। तो बस इस वजह से बस खर्चे ज़्यादा कम है नहीं, आमदन आनी नहीं, खर्चे हैं आमदन है नहीं गी। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ बताओ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋੜਿਆ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? बड़ी मुश्किल ना गुजारा होने जी, बस 1800 रुपये बस ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? सुबह से जी शाम थोड़ी रात 8 तक। ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ 8 ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ? नहीं नहीं जी, पेट्रोल है बड़ी मुश्किल है, पेट्रोल है पैसे पूरे करने बाद कुछ भी ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? जी ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ? नहीं जी, पैसे तो वही देने जिसे 200 हुए लेकिन 100 रुपये ले ले। ਤੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ? बस ये हुकूमत ने चाहिए जी बस के कम साढ़े सैट हो जाए कम। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਯੰਗ ਨਡੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਿੰਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ट्रैफिक पुलिस ही तो कोई मसला नहीं गा, ट्रैफिक वाले भी ज़्यादा बस पर्चा देने एक स्टाफ से छोड़ देंगे, घंटे 2 घंटे खलोते रहने तब बस छोड़ देंगे, उल्टा मार देने, हेलमेट ले लेने। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਦੇਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਲੋਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। जी बस बिल्कुल छोड़ देंगे, किसी स्टाफ से भी नहीं छोड़ देंगे। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ तमाम देखने वाले कैसे कम अज़ कम इन्हों परचा ना करो क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे 800-1000 रुपये उन्होंने मजदूरी होंगी, 500 रुपये का परचा लवन तो क्या कर सन सारा दिन। तो अगे लोगों नाल गल कर रहे हैं, देखने कि सानू और किहड़े लोग मिलते हैं तो उन्होंने इस टॉपिक के हवाले नाल क्या कहना है। जी नाज़रीन इधर एक और साढ़े नाल साहब मौजूद है, आओ इन्हां नाल भी गल कर रहे हैं, देखने इन्हां दा अपने जिहड़ी बाइक चलाते हैं राइडिंग लोगों नू सर्विस देंदे पे इन्हां दा क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अयाज़ है। अच्छा रियाज़ भाई, मुझे बताइएगा कितने टाइम से आप ये राइडिंग कर रहे हैं, बाइकियाँ चला रहे हैं पेशावर में? पेशावर में तो मेरा 3रा दिन है। अच्छा, मैं वैसे बेसिकली रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है।
लेकिन रिक्शा चलाने से वो सिंजी बिल्कुल बंद है। घर के हालात ख़राब होने से ये मैं इसलिए ਇਸ निकला। ਪਰ ਆਪ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾइवर्ट कर ਦਿੱਤਾ है मतलब ये एक मजबूरी के तहत आप इधर शिफ्ट हो। मजबूरी की वजह से मैंने मोटरसाइकिल निकाला है, लेकिन मोटरसाइकिल भी निकाल के पेट्रोल इतना महंगा है ना कि कल मैंने 1000 का पेट्रोल डाला है और उस पर मैंने 1300 रुपये करके फिर स्पेयर हो गया, फिर मैंने 500 रुपये डाले, अभी मेरा जो है ना वो हो गया 700 रुपये। तो यानी बरकत बचत नहीं है इसमें। बचत नहीं है, वैसे बस मार दौड़ है बस। और आपको ट्रैफिक वगैरह तो तंग नहीं करते ट्रैफिक वाले? बस अभी तो तंग नहीं किया है हमारा तो ख्याल वैसे। और आप कह रहे हैं कि मतलब हालात इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि न रक्शे में गुजारा हो रहा है और न इसमें गुजारा हो रहा है, तो हुकूमत से क्या? जब से सिंजी बंद हुए मैंने 10 दिन दिहाड़ी की है, ठीक है। और फिर दिहाड़ी ना मिलने से फिर ये मोटरसाइकिल बच्चे के वो स्कूल जाता था तो इसलिए मैं मोटरसाइकिल निकाल लिया। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਸੇ ਉਹਨੂੰ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ CNG ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣੇ ਵਸੇ, ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਵਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਣਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਇसी ਲੜਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਸੀ 50 100 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 200 ਬਣਦਾ 250 ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੋ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। जी नाजरीन एक भाईजान मेरे नाल मौजूद हैं, आओ कि इन्हां नाल गल करने देखने इन्हां दी की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? अदनान जी। ਅਦਾਨ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? मेरा सर जी कोई 2 साल हो गए। 2 ਸਾਲ। हाँ जी 2 साल। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੋ? बस सोनू पता कम कर दे मज़े नहीं गे, बिल्कुल कारोबार का बिल्कुल मज़ा नहीं गा। यकीन करो जिथे जाओ तनख्वाह इतने घट होन इस पिछोड़ दे शिकार कि ते पूरा नहीं पैदा कर। यकीन करो पहले होंदा है वक्त होंदा है 1000 का गुजारा होंदा है, उनते 2000 से भी गुजारा नहीं होंदा। यकीन करो इतनी महंगाई है तो मजबूरी तो मोटरसाइकिल पहले हालात भी सस्ते है, चीज़ां भी सस्ती, हुण महंगाई दा भी महंगाई दौर हो गई जी। पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, पेट्रोल की चला गया जी। देखो आजकल सवाई ने बैठाओ तो भाई 200 रुपये की चीज़ करा जी 100 रुपये तो कितने राजी होंगे जी? 100 रुपये तो कम ही नहीं होता बिल्कुल ही, मजबूरी चलाने पे। ਮੈਨੂੰ बताओ कि भाईजान के पहले 2 साल से हुण तक तुहाने काम किया है, पहले तो इतने लोग इस अवेयरनेस नहीं आई, हुण तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए ते कि तुहाने लोगों नाल भी गपशप लगाई उसी जड़े और बाइक राइडिंग करते पैन, सर्विस देंदे पैन इजी के मकसद है, के समझते हो, के रीज़न है कि इतनी ज़्यादा तादाद पिशावर दे विचकार नज़र आती पई है? सर जी बेरोजगारी हो गई ना सर जी, बेरोजगारी बहुत हो गई है जी। जिन्होंने देखो जी सरकारी महकमे वाले बंदे वो भी चलाते पे नाल। यकीन करो ये तो बात नाजायज़ है ना, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं ये उन्हां दा हक है ते उन्हां दा हक मारा जांदा पिया। देखो सही गल यही गल है सर जी, क्या करिए हुण मजबूरी है जाना पैंदा वे। यकीन करो कि हम भी सुबह दे निकले हैं, यकीन करो 500-600 रुपये होए है, ठीक है, गुजारा भी नहीं होता। क्या करिए अगला 100 रुपये से मिल जाता है, वैसे 200 कहने अगला 100 ते ले जाता वे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मेहरबानी करो मैं कुंभ से गुजारिश करने का खरीद मेहरबानी करो सारे गरीबों पर रहम करो, जरा पेट्रोल कम कर दो बस वाली। ਮੈਨੂੰ बताओ पहले तो लोग एक मुख्तलिफ कंपनियां नाल कम करते, आजकल तो बस खाली हेलमेट नाल कम चलाते पे, हुण कंपनी नाल कम करते पे कि आप ही कम करते पे? बिल्कुल करते करने लोकल जी कंपनी नाल बिल्कुल रब्ता नहीं है सारा। की वजह लोगों ने हुण कंपनी से ट्रस्ट खत्म हो गया या वजह की? नहीं मसला है सर जी कि कंपनी वाले भी परसेंटेज मांगते हैं। अच्छा ठीक है जी। और देखो 100 रुपये की गल है तो 20 रुपये तो सुन 10 डिस्काउंट हो। अच्छा दूसरी गल है जो रास्ता कहते हैं उस सिलसिले से जाने नहीं है, क्योंकि 100 रुपये किराया हुए 200 रुपये किराया हुए सॉरी तो कंपनी 100 रुपये ले जाती है, ये मसला है। ते मतलब वो ज़्यादा डिस्काउंट देनी है तो तुहानू वारा नहीं पैंदा? नहीं वारा नहीं करता सर जी, ये तो अपनी बादशाही आप लोकल जिस टाइम मर्जी जाए, जिस टाइम मर्जी आप रेट बताइए बस वो मर्जी। जिस टाइम आओ तो जिस टाइम बंद करो, कोई मसला यही गल नहीं ते कितना घंटा चलाते हो? सर जी मैं सुबह 8 से लेकर रात 10 तक।
ਤੇ ਥੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯਾਰ सर जी क्यों नहीं थकने जी, थकते जानिए बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग मेहनत ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦਾ ਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਸੋ ਕਿ ਜੋ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰ ਸੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਕੀ ਕਹਿਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बस उन्होंने कैसे कि जी अच्छा वक्त भी तो बुरा वक्त भी आने इंसान थे, ठीक है ना, यही पैसा जोड़ो तो यहाँ पर से कुछ 2 पैसा कमाओ, 1.5 लाख तो 2 लाख में छोड़ो तुझी गरीबी करो अपना वक्त गुजारो। मैं तो यानी कि स्टार्ट लो कुछ ना कुछ करो कारण बैठ के हर टाइम मोबाइल यूज़ करने कुछ नहीं मोबाइल बाना कोई यूज़ नहीं कर जी, मोबाइल आजकल गपशप हो गई सारी, जिसे देखो जी मोबाइल गड्डियों ने देखो मोबाइल और किसने मोबाइल पकड़ी यार मोबाइल से लेंदा मेरा देखो नौजवान नस्ल मेहनत सी कतरानी है कहनी शॉर्टकट मिले कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ बस इस चक्कर तो हो नहीं सकता जी, ये तो ख्वाबों से पूरे नहीं होते ऐसे, यकीन करो मेरा कोई मोबाइल है सादा मोबाइल फिराना भी वहाँ पे यकीन करो। इस दौर के विचकार भी देखो भाई जान सादा मोबाइल रखो है कई साड़ी भाभी से डर के तो नहीं रखो नहीं 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 मेहरबानी सर। चलो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੇ ਬਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮਨ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है जी? मेरा फयाज खान। कितने टाइम से खैर से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं तो 2 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो याद है पेट्रोल की क्या प्राइस थी उस वक्त? उस टाइम तकरीबन यही थी 200 के करीब थी। और आज क्या प्राइस चल रही है? आज तो 458 तक पहुंच गई है और अभी फिर कह रहे कि सस्ता 200 महंगा कर दिए और कभी थोड़ा सस्ता कर दिया तो कह रहे कि चीखे मार रहे कि सस्ता कर दिए। 368 रुपए की लीटर तेल है। आखिर खाली तेल की भी बात नहीं है भाई, मैं एक बाइक चलाता हूँ इस पे मेरे पूरा घर चलता है। अच्छा माशाल्लाह आप फुल टाइम काम कर रहे हैं? क्या करूँ और जो फुल टाइम काम करके भी 1800 ये बचत जाए ना, पहले चलो 1500-1600 1800 रुपए बचते थे तो थोड़ा बहुत गुजारा होता था। इससे पहले आप क्या करते थे यानी इस बाइक से पहले? यही मजदूरी करते थे, हम तो मजदूर लोग हैं लेकिन अभी मुश्किलात ज़्यादा है। रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता है, शुक्र है, लेकिन ये हुक्मरानों को भी थोड़ा समझ आनी चाहिए। मुझे बताएं कि लोग आपको मतलब तंग तो नहीं करते, प्राइस में छेड़छाड़ तो नहीं करते जब से, क्योंकि अब आपको भी जहाँ पर पहले आप 100 रुपये लेते थे अब हो सकता है अब आप 200 रुपये लेते होंगे, आप वारानी को मेरे जो बंदे जो 250 की लीटर थी ना वो जो रेट देते थे ना अभी भी वही रेट देते हैं। लोगों के माइंड में वही चल रहा है। कह रहे हम उसको कह के यार पेट्रोल महंगा, कह रहे हैं कि हम क्या करें यार। वो फिर कहते हैं कि हम रक्शे में जाते हैं इस तरह। हाँ तो फिर हम मजबूरन उनको बिठा देते हैं, 20 30 50 कम भी हो तो भी बिठा देते हैं। क्या करें, आपको बचत, आपकी जो बचत है वो कम हो गई आपको? बचत तो बहुत कम हुई है। मैंने क्या कि मेरे माल दो 5 बच्चे हैं तो घर हैं, खर्चे हैं, दारू हैं, ये डॉक्टर के आते हैं, सब दवाइयाँ हैं, सब मैं ही अकेला। अच्छा मुझे बताएं कि कितने घंटे आप ये चलाते हैं? ये मैं सुबह 8 से तकरीबन रात 8-9 तक यह चलाता हूँ। आप 8-9 तक चलाते हैं। इन तमाम सिनेरियो में जो आप चला रहे हैं आपको यकीनन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, बारिश है, धूप है, गर्मी है, हर किस्म का माहौल आप देख रहे हैं। ये भाई मैंने सुबह से तकरीबन 600-500 रुपए कमाए, अभी ये बारिश शुरू हो गई, अभी हमारी छुट्टी हो गई। अच्छा दूसरा ये बताएं बारिश में फिर लोग नहीं बैठते बाइक पे, वो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं यानी रक्षों की तरफ या फिर उनको टैक्सी मिलती है तो उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा बताइएगा आपको ट्रैफिक के हवाले से कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये लोग आपको तंग तो नहीं करते ट्रैफिक एहलकार? यार भाई मैं अपने ईमान ख्वार नहीं कर सकता हूँ। ट्रैफिक वाले गुजारा करते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं, नहीं, उनके अपनी जगह, लेकिन हम अगर करीम वालों के साथ गुजारा करते हैं, साफ बात, अच्छी बात है। देखिए सिंपल बात है, आपके पास अगर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, बाइक आपके पास है, हेलमेट आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, रजिस्ट्रेशन आपके पास है, तो आपको किस बुनियाद पे वो मतलब करेंगे ना। अगर आप देखें तो उनकी भी मजबूरी है कि एक चौक पे अगर बहुत ज़्यादा खड़े तो हम बाइक वालों को भी चाहिए कि अपना एक लाइन बनाएं। मुझे पता है मजबूरी ये सही है, लेकिन ट्रैफिक वालों को भी चाहिए कि इनके लिए प्रॉपर कम से कम कुछ ऐसा एरिया बनाए कि जहाँ पर वो
کھڑے ہو جائیں یا ان کے لیے کوئی کچھ سیٹنگ سوچنی چاہیے حکومت کو؟ صحیح ہے جی، لیکن ابھی آپ کے پاس سب کچھ پورا ہے نا، تو وہ بھی بیچارے آگے پیچھے سے مجبور ہے، وہ بھی ہماری طرح لوگ ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں پھر پرچہ دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں وہ آپ کو کہنے کا مقصد؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہماری مجبوری، احساس کرتے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مجبور ہے نا۔ ہاں، ان کی ٹھیک بھی ہے، مجبوری۔ اور کیا کہیں گے حکومت کو کہ جو پیٹرول کی پرائسنگ ہائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یار بھائی، اگر آپ کو یہ بات چلانی ہے نا، تو یہ وفاق کی حکومت سے تو ہمیں بالکل امید ہی نہیں ہے۔ ہاں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پشاور کی حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ تیل یہ سستا نہیں کر سکتے، آٹا سستا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ اور کھانے کے اشیاء سستا نہیں کر سکتے۔ مطلب پیٹرول کے ساتھ تمام چیزیں لنک ہیں، اگر آپ یہ سستا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی اشیاء خورد و نوش کی چیزیں کام یہی ہے نا، تو فل ٹائم کام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں جو اتنے 2 سال میں آپ نے دیکھا جو اتنے زیادہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہر طرف یہی دکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ بیسک وجوہات یہی کہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے بھائی، لوگ کاروبار کے لیے پیسے نہیں سنبھال سکتے، تو یہ تو مجبوراً یہی کرنا پڑے گا۔ بچوں کے لیے تو رزق کمانا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ میں 5 لاکھ کی دکان سے ابھی ادھر میں نے نقصان کر دیے تو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ کمانے کے لیے تو چھوڑوں گا۔ ایک محنت کرنا چاہیے، ایک آگے بڑھنا چاہیے، کوئی رسک تو اٹھانا ہے نا زندگی میں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو بندہ نہیں بیٹھ سکتا نا کہ اب میرے لیے منو سلوا تو نہیں اتر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جو محنت کرتا ہے اللہ اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ آپ کی برکت ڈالے آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں۔ اور ہم اسی پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام عہدیداران کو جو حکومت میں ہیں، حکومت لوگوں کو ہماری آواز پہنچاؤ۔ اسی کے لیے ہم ہیں کہ ہم یہ پروگرام ہی اصل میں پشاور کی آواز ہے، دل پشوری، جس میں ہم لوگ ہر قسم کے سوشل ایشوز اٹھاتے ہیں، اور تمام لوگ جہاں جہاں پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس میں یہی بتاتے ہیں کہ ساڑھے جڑے عوام میں ایک کس مشکلات دا شکارن، ایک کتنی پریشانیاں دا شکارن، جس طرح ان بھائی جان نے کیا ہے کہ انہاں دے 5 بچے، انہاں دی فیملی ہے، دوائیاں کار دے وچکار سستی ہے، بیماری ہے، کار دا کرایہ، بجلی دا بل ہے، خرچے بچیاں دے اسکول دی فیس ہے، یہ سب کچھ اسی بائک تے وے۔ تو بات اسی واسطے سوچنا چاہیے حکومت نو کہ ایک بندے نو تسی روزگار نہیں دیندے پئے ہو، تسی جاب اپرچونٹیز کریٹ نہیں کردے پئے ہو، تو جو لوگ یہ کم کردے پئے کم از کم انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرو نا۔ جی ناظرین، میرے نال ایک اور بھائی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ کندہار خان افریدی۔ کندہار خان افریدی۔ اچھا کندہار، مجھے بتائیں کتنے ٹائم سے چلا رہی ہیں؟ 2 سال سے۔ 2 سال سے۔ تو کتنی ایجوکیشن ہے آپ کی، تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلیم 2nd ایئر ہے۔ اچھا 2nd ایئر آپ نے کی ہوئی ہے، تو 2nd ایئر کے بعد کہیں جاب وغیرہ کی تلاش کی آپ نے؟ ہاں جی، بہت تلاش کی ہے، بس جاب نہیں مل رہا ہے، اسی لیے اپنا مزدوری اور اپنا مشقت کر رہے ہیں کہ۔ تو اس میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے؟ 2 سال سے آپ یہ چلا رہے ہیں، اس میں خوش ہیں؟ ہاں خوش ہے بس، لیکن پیٹرول تھوڑا مہنگا ہے۔ ہاں جی بس لوگ تو اب پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تعداد بھی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، ہر طرف یہ نظر آتے، کیا وجوہات کیا سمجھتے ہیں اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ یہ لوگ ہمارے حکمرانوں کے لیے بات ہے کہ انہوں نے پیٹرول کیوں مہنگا کیا ہے، جنگ اور ملکوں میں ہو رہا ہے اور پیٹرول پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، آپ کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کتنے گھنٹے یہ چلاتے ہیں؟ فل ٹائم۔ ہاں جی، اس میں تو پارٹ ٹائم والے بھی بہت آئے ہوئے ہیں نا، تو کیا سمجھتے ہیں پارٹ ٹائم والوں کو کرنا چاہیے جن کے پاس آلریڈی جاب ہے، تو وہ تو آپ کا حق نہیں مارتے جو بیچارے فل ٹائم یہ کام کریں؟ ہاں جی بس کچھ نہیں کہتا ہے، آپ ہر انسان کا اپنا رزق ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں آسانیاں پیدا کرے، ذکر کریں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام وقاص۔ وقاص بھائی، کتنے ٹائم سے آپ یہ بائکیا کا کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 2-2.5 سال سے۔ 2-2.5 سال سے آپ کر رہے ہو، تو کیوں یہ بائک لے کے کیوں نکلے ہو؟ کیا دماغ میں سوچ تھا؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا؟ سر جی، بے روزگاری پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، اسی وجہ سے بائک چلانا پڑتا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا اس میں تعداد بڑی زیادہ ہے، لوگ کافی زیادہ آ چکے ہیں، پہلے 2 سال کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے اور اب کتنے، کچھ اندازہ ہے؟ ہاں بہت، اب 70% تقریباً زیادہ ہو گئے۔ 70%۔ ہاں جی، اور ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، ہر جگہ۔ تو لوگ تو پسند کرتے ہیں نا اس سواری کو کہ یار ہر جگہ پہ انسان جا سکتا ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، گلی گلی میں آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی پرابلم ہو، تو رکشے میں دوسری گاڑیوں میں جانے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، لیکن اس میں آپ کو ٹائم نہیں لگے گا، بلکہ آپ جلدی جا سکتے۔ تو لوگ آپ کو تنگ تو نہیں کرتے، آپ کو یعنی پیمنٹ صحیح دیتے ہیں، پیسے صحیح دیتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے صحیح دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب جو پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بس پیٹرول تو بہت زیادہ مہنگا اس سے آپ کے کام میں فرق پڑے نا؟ بہت زیادہ پڑا ہے۔ سواریاں کم ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ 10-12 روپے بڑھتا تھا، اب تقریباً 100-110
रुपए बढ़ गए। तो आप एक महीने में जो आपकी बचत है वो कितनी है, मतलब इसमें अगर एक महीने में बताऊं? अभी वो तकरीबन 50% वो कम हो गए। कम हो गया 50%। तो जब आप फुल टाइम ये काम करते हो तो घर का गुजारा कैसे चलता है? बस सर चलता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को कि आपके लिए क्या रिलीफ पैकेज दे, आपके लिए पेट्रोल सस्ता करे, आपके लिए नई बाइक दे, क्या दे? बस पेट्रोल सस्ता करे। पेट्रोल सस्ता। हाँ जी। तो पेट्रोल के साथ ही जिस तरह इन्होंने एक गल की थी, बड़ी सोहनी गल है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो गया ना नाजरीन, तो इस पेट्रोल सारिया नाल लिंक के ਤੁਹਾਡੀ तमाम चीज़ां जितने भी खाने पीने दी अशिया वन और ट्रांसपोर्ट इसते चार्जिस उसते घट पैंदे ने, तो ओवैसली वाते आसानी पैदा करता है। आसानी होवे, सस्तियाई होवे, आवाम भी खुश हो सी तो लोगों वास्ते भी आसानी पैदा हो सी। जी नाज़रीन, मेरे नाल एक और भाई मौजूद हैं, उन्होंने कोलों पूछने हैं कि उन्होंने क्या स्टोरी है, क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मारूफ शाह है। जी मारूफ साहब, मुझे बताइएगा कि आप कितने वक्त से ये बाइकिया की सर्विस दे रहे हैं और इससे खुश हैं कि नहीं? यार जी, पहले हम जो तो थे ना, ये 2 साल से मैं चला रहा हूँ, ठीक है। पहले जो था पेट्रोल सस्ता था तो ख़ासी मजदूरी होती थी। अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया तो अभी कुछ है भी नहीं। और सुबह 9 बजे से मैं निकला हूँ, सुबह 9 बजे से मैं निकला हूँ, अभी तक मैंने जो है ना 300 रुपये किए हूँ मैंने। तो ये देखो क्या है ये हालात। अब 9 बजे से आप इधर बैठे रहे हैं, बस खड़े रहे हैं, फिर भी यानी काम उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए? नहीं है जी, मैं कभी कभी किसी चौक में खड़ा हो जाता हूँ, कभी किसी चौक में खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल काम है ही नहीं। पेट्रोल की वजह से जो है ना सारा सब कुछ तबाह हो गया है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो एक बात है कि पेट्रोल की कीमत की बढ़ने की वजह से आपके काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जी बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत। ठीक है, अगर ये बताएं, मैं देखता हूँ वक्त के साथ साथ बाइक के जो राइडर्स हैं इनकी तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अगर आप पेशावर में देखें, अशनगरी, फिरदौस, लाहौरी गेट, सदर बाज़ार, बाना माड़ी, जिस चौक में आप चले जाएँ या कतूत से लेके वहाँ पे आपको ये राइडर्स मिलेंगे। तो इसकी क्या वजूहात है, क्यों इतने ज़्यादा हो गए? यार जी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है, क्या करेंगे। हर कोई जो है ना ये मोटरसाइकिल निकालता है, बस सरकारी लोग भी जो है ना वो भी निकालते हैं मोटरसाइकिल, ओवर से इस पे 2 रुपये कमा लेते हैं। तो मतलब जो लोग फुल टाइम ये काम करते हैं वो तो ठीक है कि उनका रोज़गार ही, अपने घर का ख़र्चा भी इसी पे चल रहा है, लेकिन जो लोग सरकारी जॉब करने के बावजूद पार्ट टाइम ये काम करते तो वो ये सही करते हैं कि नहीं करते? उनका हक नहीं मारा जाता कि जो बेचारे ऑलरेडी फुल टाइम ये काम कर रहे हैं तो उनको काम नहीं मिलता राइड्स, और जो पार्ट टाइम है वो ज़्यादा राइड्स लेके जाते हैं? ये जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों को ये चीज़ छोड़नी चाहिए। सरकारी जो भी है ना वो तो वैसे भी तनख्वाह लेते हैं। ये बात है, ये क्या है? तनख्वाह लेते हैं। हम जो है ना सुबह से फुल टाइम काम कर रहे हैं। फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा है जी। हाँ, तो मतलब इसी वजह से है ना कि अब राइडर इतने ज़्यादा हो गए, लोगों के पास ऑप्शन भी ज़्यादा हो गए। अगर एक बंदा 250 मांगते है, अगला बंदा 200 में जाता है, अगला एक 200 में जाता है तो अगला 150 में जाता है। बिल्कुल इस तरह है जी। अगर हम 200 मांगते हैं तो अगले वाला जो है ना 100 पे भी ले जाता है। ठीक है, गरीबी है ना यार, क्या करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आपको इस तमाम मामलात में जो आप करते हैं 8 घंटे की सर्विस, इसमें आपको ट्रैफिक के हवाले से कोई मसले मसाइल हों, या आपको तंग किया जाता है, या आपसे रिश्वत मांगी जाए, या आपसे बेवजह आपको कहा जाए कि यार यहाँ से चले जाओ, तंग तो नहीं करते आप? नहीं जी, ट्रैफिक वाले हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ करता है। हाँ, कुछ भी नहीं कहता हमें, बस यही है कि अगर रश पड़ जाए ना तो थोड़ा सा आगे होना, थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि यार इधर से जाओ, वहाँ तो पे ये जाओ। भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, उनको भी असल में एहसास है कि आप लोग भी अपनी मेहनत और मजदूरी के लिए निकले हुए हो। लेकिन माशाल्लाह मैंने आपको देखा है, बाकी मैं बहुत लोगों के साथ मिला हूँ, लेकिन माशाल्लाह आप बड़े साफ़ सुथरे और बड़े सलीके से बात कर रहे हो। माशाल्लाह कितनी एजुकेशन है? मैट्रिक है जी बस। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ है, तो फिर फुल टाइम ये काम करें। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। और हुकूमत के लोगों को, तमाम लोगों से क्या मैसेज देंगे कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, आवाम को रिलीफ दे, क्या कहें? ये जी, अगर पेट्रोल कम हो जाए, कीमत कम हो जाए तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा होगा जी, हमारे लिए फ़ायदा होगा। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। मेहरबानी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी ज़बरदस्त गाना की इस भाई ने इन्होंने किया है कि पेट्रोल की कीमतां घट हो जावन। हुआ इन्होंने बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि जड़े लोग फुल टाइम कम कर दें, पहले राइड का हक उन्हों का बनता है, जड़े सरकारी लोग पार्ट टाइम में कम करते पे उन्होंने सोचना चाहिए। क्योंकि देखो तुसी लोग ऑलरेडी तनख्वाहां लेंदे पे हो, इन्हों कोल ते नौकरी भी नहीं, इन्हों कोल ते घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों का स्कूल की फीसां, सब चीज़ां इससे डिपेंड कर दी। तमाम लोगों को भी कहना वा कि राइड का इस्तेमाल करो, तो जितना ज़्यादा इन्होंने नाल तामुन कर सकते हो तामुन करो।
جی ناظرین جس طرح میں نے تانوں کیا ہے کہ اج اسی خالی لوکاں نال گل نہ کر سے بلکہ اپنے ٹریفک اہلکار نال بھی گل کر سی آفیسرز نال بھی گل کر سی کہ مین وجوہات کیون کہ جس دی وجہ نال ٹریفک دا جڑا نظام ہے بڑا رش بہت زیادہ ہے غلط عوام دی کہ غلطیاں تے اسی رہنمائی کرنے واسطے ساڈے جڑے اہلکار اپنی ڈیوٹیاں دیندے پین میں کہنا ہوں صبح بھی دیندے پین رات نو بھی دیندے پین بارش بھی دیندے پین گرمی دے وچکار بھی دیندے پین اے اپنی ڈیوٹی دے اگے کچھ بھی نہیں دیکھ دیتے انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عوام سے کہ شکایت ہے. السلام علیکم آپ کا نام سر؟ میرا نام بختیار علی ہے. وعلیکم السلام. بختیار بھائی سب سے پہلے بتائیے گا ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پشاور میں ٹریفک کا نظام ہے الحمدللہ جو ٹریفک اہلکار ہے بے تحاشا اپنی سروسز دیتے ہیں ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں ہر چوک میں ان کو دیکھتا ہوں لیکن ہماری ٹریفک کنٹرول نہیں ہو رہی. کیا ریزن ہے اس کا؟ سر جی پہلے وجہ تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی یہ رکشے ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گیا. ابھی تیز رفتار ہے اور بھی گاڑیاں ہیں اس طرح ہیں یہ لوڈر وغیرہ ہیں. ابھی موٹر سائیکل دیکھو ہر جگہ اس بائک کے حوالے سے وہ ہر جگہ پارکنگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں اپنے جو بڑے لوگ ہیں نا اس سے بھی کچھ زیادہ شکوہ کروں گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی گاڑی ہے یہ غلط پارکنگ ہوتا ہے مین روڈوں پر. اگر ہم اسے کہیں گے کہ بھائی یہ گاڑی ہٹاؤ تو یہ ہوتا ہے میں افسر ہوں فلانا ہوں یہ تمہارا صاحب تم نہیں جانتے ہو بس کس طرح. لیکن میں ماشاءاللہ اس بات کا تو میں اپنا عینی شاہد ہوں کہ ہمارے جو ٹریفک والے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پنجاب ادھر جائیں تو لوگ کہتے ہیں خالی چھوٹی گاڑیوں کو پکڑتے ہیں بڑی کو نہیں پکڑ. ہمارے ادھر چاہے بڑی گاڑی ہو کہ بڑی سے بڑی گاڑی ہو الحمدللہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو وہ قانون کے دائرے میں اس کو لایا گیا. ابھی ایک بندہ میں نے پکڑا لیا میں نے کہا یہ شیشے کالے ہیں اور اس کا ہیلمٹ بھی نہیں سیٹ بیلٹ بھی نہیں تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا نام بتاؤ تو میں نے کہہ دیا کہ دیکھو میرا نام یہ ہے. پھر دھمکی دے کر حالانکہ میں نے چالان دے دیا ہے لیکن وہ دھمکی دیتے ہیں. پھر یہ ہمارے لوگوں کی یہ سوچ کب بدلے گی کہ ہم اتنی ایجوکیشن ہو کہ سب کچھ تعلیم ہو کہ یہی لوگ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ناظرین ہم لوگ سیٹ بیلٹ بھی پہنیں گے ہم ٹریفک کے قوانین کی بھی پابندی کریں گے لیکن یہاں پر ہم لوگوں کو ایک انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ ہم اگر پرچہ لے لیں یا کچھ کریں. بھائی اگر آپ دبئی جاتے ہیں سعودی جاتے ہیں تو کیا آپ کو اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کو پرچہ نہیں ہوگا کیا؟ سر جی ہوتا ہے لیکن ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ادھر لوگ مانتے نہیں ہیں. مینٹیلٹی ہے بس یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے چالان دیتے ہو یہ میرا توہین کرتے ہو. حالانکہ چالان اس کے یہ حد دہانی کے لیے ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. ایک مرتبہ آپ لوگ تو پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے لیکن وہ بار بار کہتے ہیں اور دھمکی بھی دیتے ہیں اور یہ فلانا نہیں جانتا ہوں فلانا صاحب کو نہیں جانتا ہوں. عوام کو چاہیے کہ ایک تو قانون کی پاسداری کریں اور دوسرا ہاں عوام کی جتنی بھی شکایات ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا یار آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں. کوئی غریب ہو جیسے بائکیا والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بڑی نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ نمبر پلیٹ دیکھو یہ غیر قانونی نمبر پلیٹ حالانکہ اس کا 1000 چالان ہے سرکاری نمبر پلیٹ لگی اوریجنل. میں پھر بھی گزارا کر لیتے ہوں کہ غریب طبقہ ہے اس کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکے. اچھا بختیار بھائی یہ بتائیے گا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کے نام سے بے تحاشا اس پہ ابھی تک وہ والا فلٹر نہیں آیا کہ جو کراچی میں ہے کہ جس پہ ڈائریکٹ آپ کو چالان ہو جائے سیٹ بیلٹ پہ اس پہ تو ان کیمروں کی وجہ سے بھی کوئی ہیلپ ملے گی یا لوگوں کو کل کو اگر وہ فلٹر لگ گیا تو پھر تو ہمارے لوگ پاگل ہو جائیں گے. سر جی ہم تو ان لوگوں کو یہ دہانی سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے کیمرے لگے ہوئے تھوڑا بہت شرما جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا عمل جاری رکھتے ہیں اس کا پرواہ نہیں کرتے ہیں. سر جی تو مطلب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایز اے پاکستانی ایز اے پشاوری ایز اے پشوری ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اگر ہم لوگ ایک غیر قانونی پارکنگ مت کریں. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ یار قانون سب کے لیے برابر ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اس کا بیٹا ہوں میں وزیر ہوں میں 22 گریڈ کا افسر ہوں. اگر آپ 22 گریڈ کے افسر ہو تو بھائی آپ سیٹ بیلٹ باندھو آپ اپنا لائسنس لو اپنے گاڑی کے ٹوکن کرو آپ اپنے گاڑی میں کالے شیشے مت کرو. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ٹریفک والے اب چاہے جو بھی ہو آپ سب سے اخلاق سے بات ہوتی ہے سب سے پیار سے بات ہوتی ہے مسکرا کے بات ہوتی ہے لیکن آگے سے ہمارے لوگ بدماشیاں کر رہے ہیں تو یہ قانون یہ مہذب قوموں کی یہ نشانی نہیں ہے. اور جو ان کے SOPs چل رہے ہیں میں نے ٹریفک کے نظام جو ان کے عہدیداران ہیں بڑے الحمدللہ کافی محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو لائن پہ لائیں. کیا میسیج دیں گے تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ سر جی بس ہمیں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا ہے منت کرنا ہے کہ یہ غلط پارکنگ نہ کرے جگہ جگہ پر جو تجاوزات ہے وہ ہٹائے اپنے حدود میں رہیں تو انشاءاللہ
फिर आप ही को होगा। और बस आवाम की तरफ से मैं ये बात कहूँगा कि यार देखें जो बाइक किया इनको तो आप बिल्कुल हाथ इन पे हल्का रखें, बेचारे कमाने के लिए निकले हुए हैं, इनके हालात ऑलरेडी टाइट। इन्होंने तारीफ़ भी की है कि यार हमारे साथ बहुत गुजारा करते हैं, तो उनको पता है यार कि घर उसी की मजदूरी उसी पे चल रही है। और जो गैर कानूनी रक्शे वाले हैं ये इन पे तो करें, लेकिन बस खैर इनको ज़रा छोटा छोटा पर्चा दिया करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बड़ी खूबसूरत गल इन्होंने की इस हवाले नाल सानू ये मैसेज दिता जाता है कि साने बहैसियत पिशोरी बहैसियत पाकिस्तानी अपने कानून की पासदारी करनी। और पासदारी किस तरीके नाल हो सकती है कि जो तुहानू इशारा दिता जाता है सिग्नल ते रुको, तुहानू अगर तुहाडे सी लाइसेंस दा पूछा जाता है तो देवो, ये कोई तुहाडी बुराई नहीं गी, ये तो एक तुहाडा शहरी होने के नाते पाकिस्तानी तुहाडा फर्ज है। जिस तरह फौजी तुहाडे कोल आईडी कार्ड मंगदे तुसीं देंदे हो ना, इन्हां दा काम है तुहाडा लाइसेंस चेक करना, गड्डी दे कागजात चेक करना। दिन रात मोटरसाइकिलां चोरी होंदी पईयां, दिन रात कंप्लेन्स आंदी पईयां। अगर ये लोग अपनी ड्यूटी सी अगर पिछे हो जावन या इस पूरी तरीके नाल ड्यूटी ना करन तो यकीन मनो ये जड़े हादसात हैं ते जड़े जितनी ट्रैफिक दे रिलेटेड मसाइल हैं और ज़्यादा हो जावन, ये ते करके कंट्रोल करते पे ते बहैसियत शहरी इंशाअल्लाह सी अपना पूरा कोशिश कर सकें कि अपने ट्रैफिक के तमाम कवानीन पूरे करिए। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने तुहानू किया कि अज मैं तुहानू आवाम दे नाल ट्रैफिक दे जड़े साढ़े सुपीरियर हैं उन्हां नाल भी गल कर सी, उन्हां नाल भी देख सी कि उन्हां नू असली साढ़े आवाम नाल के शिकायत हैं, के मसले मसाइल हैं साड़ी ट्रैफिक दे जो इला तक हल नहीं हुए। मेरे नाल मौजूद हैं हसीनुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। असल में बेसिकली ये अवेयरनेस है कि हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं कि मैंने हमेशा देखा है कि हमारे जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं, जनाब गर्मी हो बारिश हो, हर टाइम आप लोग अवेलेबल होते हैं, तो क्या ट्रेनिंग है आपकी कि आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं? बस ये तो हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझते हैं, लोगों की आवामों की खिदमत है और हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी दिल लगन के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है चाहे वो गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो। अभी जो बारिश का मसला हुआ था तकरीबन एक हफ़्ते पहले मुसलसल 4-5 दिन, तो हमारे तमाम एहलकारों ने बहुत अच्छी तरह से बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हर चीज़ में ड्यूटी है। दूसरी बात भी यहाँ पर यह भी सराहने की है कि चाहे दिन हो कि रात हो मुझे यहाँ पे एहलकार अपने नज़र आएँ, चाहे ईद की छुट्टियाँ हो मुझे अपने एहलकार यहाँ पे नज़र आएँ, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ये जनाब हमारी CTO साहब डॉक्टर ज़ाहिदुल्लाह साहब की बहुत कोशिश होती है कि हर वक्त रोडों पे मतलब एहलकारों को प्रोवाइड करें और इसी तरह तकरीबन 3 शिफ्टों में हमारे एहलकारों को डिवाइड किया है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और इवनिंग नाइट शिफ्ट होता है। माशाल्लाह निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। हसीन साहब मुझे बताइएगा क्या समझते हैं कि वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक का जो बर्डन है पेशावर शहर में ज़्यादा हो रहा है, पेशावर में लोग घूमने के लिए भी आते हैं जाते भी हैं, तो ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है ये कंट्रोल मतलब इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जी अभी तो ये रिक्शो वाला और ये जो बाइकिया वाला होते हैं ना ये ज़्यादा हो गए हैं, तो बाहर से जो जब लोग आते हैं तो ये जहाँ जगह जगह पे खड़े होते हैं। हम तो ट्रैफिक एहलकार हैं, हम तो इसको नो पार्किंग बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, बस मतलब एजुकेशन के साथ साथ हम चालान भी देते हैं, लेकिन इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर ये जो अनएजुकेटेड पीपल है, खैर है हम तो इसको चालान कर देते हैं एजुकेशन के हवाले से तो ये नहीं, लेकिन फिर भी हम जगह जगह पे साइन बोर्ड्स वगैरह सिंबल्स लगा लेते हैं कि उसको शऊर अकल थोड़ा पैदा हो। क्या कहते हैं, मैंने तो यहाँ पर ये जो शऊर वाले और एजुकेटेड लोग हैं उनको भी देखा है कि वो भी आप लोगों के साथ बहस करते हैं और कहते हैं मैं इसका बेटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। यानी लाइसेंस अगर आप एक मांग रहे हैं तो ये तो एक बेसिक ज़रूरत है। अगर आप गाड़ी के कागजात चेक करें तो इसमें लोगों को अपनी अना का मसला क्यों बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जी बिल्कुल ही, अक्सर ज़्यादातर एजुकेटेड पीपल है हमसे बहस करते हैं, तकरार करते हैं। मतलब अगर बाहर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं या पंजाब से आते हैं, जो यहाँ पे हम खड़े करते हैं तो उसको कहेंगे कि यार अभी तो ई चालान वाला सिस्टम आ रहा है, तो आप क्या होगा फिर? तो आपको ज़रूरी है कि आप सीट बेल्ट बांध दें, तो ये ट्रेनिंग है। हाँ ना, इफ़ educated people, if they are not following the rules and regulation, how we will expect from rickshaws drivers, Suzuki drivers? And the people which we have to focus is that this is the main thing that you have to follow rules regulation of as a citizen you have to follow ना। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं, एक सिविलाइज कौम का क्या निशानी है कि एज अ सिविलाइज हम। अच्छा मुझे बताएं सर कि हम जो लोग बाहर चले जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे तो फॉलो करते हैं, यही आवाम फॉलो करती है वहाँ पे, और वहाँ पे फ़ाइन बड़े हैवी फ़ाइन्स हैं। अगर मैं दुबई की बात करूँ, सऊदी की बात करूँ, तो वहाँ के फ़ाइन कैसे अफोर्ड करते हैं फिर?
जी बिल्कुल, यही मसला होता है ना कि यही अवाम, पाकिस्तानी अवाम जब बाहर जाते हैं तो फिर रूल्स भी फॉलो करते हैं, रेगुलेशन भी फॉलो करते हैं, लैंड डिसिप्लिन का ख्याल भी कर रहे थे। मतलब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इस तरह करना है कि वो जो पुश्तों में एक मकूला है, जहाँ डब होता है ना वहाँ अदब भी होता है, तो यहाँ पे भी इसको लाजिमी करना होगा। मतलब हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ भी चालान करें, लेकिन कब तक ये बड़ी तक माशाल्लाह बड़ी वार्निंग दे के भी छोड़ देते हैं। मैंने तो ये भी नोट किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं खड़ा होता काफ़ी ऑब्ज़र्व किया, तो हमारे जहाँ तक हेल्प हो सकती है, जो लोग मतलब गरीब हैं या जिसको इनको पता है कि यार जो मज़दूरी के लिए निकले हुए हैं, लेकिन चाहे आप मज़दूरी के लिए निकले हैं, आपने अपने रूल्स रेगुलेशन हर एक चीज़ फॉलो करना है। और दूसरी बड़ी ज़रूरी बात है कि जब आपको एक सिग्नल दिया जाए, इशारा दिया जाए, आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जो बाज़ लोग नहीं रुकते तो उसमें बड़ा शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, जो सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया जा सकता है। तो उस हवाले से भी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप डर के मत भागें, खुदा न खास्ता फिर आप पे फायर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह बहुत सारे केसेस आते हैं यहाँ पे। ये तो कैंट एरिया है, सामने CMH भी है और यहाँ जनरल अस्पताल भी हैं, तो ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, करक बनो एरिया से आते हैं। तो ये जब हम इसी को इशारा कर देते हैं तो फिर इसको रवानगी में उसको इशारा कर देते हैं कि यार इमरजेंसी है, मरीज़ है, तो हम इसको साइड पे खड़े कर देते हैं, चेक करते हैं कि वाकई इमरजेंसी है कि नहीं है। अगर इमरजेंसी अगले को तो नहीं पता ना कि क्या है, अगर किसी का के साथ इमरजेंसी हो या मरीज़ हो तो हम इसके साथ अपना मोबाइल करके इसको स्क्वाड कर देते हैं कि इसकी हेल्प कर देते हैं, उसको एरिया बता देते हैं, तो मतलब वो सायरन लगा के उसको जगह देते हैं कि वो आसानी से अस्पताल पहुंच जाए। तो ये हमारी ड्यूटी के साथ साथ मतलब उसको अवेयरनेस भी की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और भी यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने ट्रैफिक एहलकार को कि मैंने हमेशा यहाँ पर एक चीज़ नोट की है कि जब भी फैमिली साथ होती है तो हमारे KP पुलिस को सलाम है कि उन्होंने कभी रोका ही नहीं है उस बंदे को, चाहे कुछ भी हो। तो ये फैमिली का भी तकद्दुस का ख्याल किया जाता है। हालांकि आप पंजाब उस साइड पे जाएँ, फैमिली हो जो आपको कहते हैं साइड पे आ भाई चेकिंग करवाओ, तो हमारे लोग बड़े लिहाज करते हैं, तो हमें भी लिहाज करना चाहिए, हमें भी बताना चाहिए और अपने शहरी होने का सबूत देना चाहिए। क्या मैसेज देंगे तमाम देखने वाले को, पेशावर शहर के लोगों को, बासियों को, कि रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करें लेकिन किन बातों का ख्याल रखें? ये मेन जो पेशावर आवाम को जो मैं से देना चाहता हूँ वो ये है कि लैंड डिसिप्लिन का ख्याल रखें। जहाँ पे मतलब BRT स्टेशंस हैं, इसके साथ पार्किंग बिल्कुल मना है, और लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा होती है ना कि, और अक्सर जो बाइक वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो काफ़ी हद तक हेलमेट का इस्तेमाल हाँ हुआ है, लेकिन आवाम से यही उम्मीद है कि वो हमारे साथ कोऑपरेशन करें और जो इसमें वायलेशन है उसका चालान खुश असलूबी से ले लें। सर हाँ, और हम आपसे एज आवाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बाइकिया वगैरह बेचारे गरीब, आज हमने उनके साथ भी बात की है, ठीक है जो लाइसेंस नहीं है वो नहीं है, पहले तो अपने लाइसेंस बनवाएं, अपना हेलमेट ले, अपने गाड़ी के कागजात रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, फिर बाइक निकाले, लेकिन उन पे हाथ ज़रा हल्का रखें। वो बेचारे, खैर उन्होंने तारीफ़ भी की है कि वो बेचारे अपनी नौकरियां नहीं हैं यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो वो अपने घर के खर्चे के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि हमें खाली जब रश होती है तो ट्रैफिक वाले कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो उम्मीद करता हूँ उनके लिए ज़रा उनके लिए हालात थोड़े से बिल्कुल इंशाल्लाह इसके साथ बहुत कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसको ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा हमारे साथ इस तरह कोऑपरेशन करे कि जहाँ पे BRT स्टेशन हो या बस स्टॉपेज हो तो इस पे मतलब 2-3 बंदे खड़े हो जाए, ये 15-16 बंदे खड़े हो तो फिर इसके साथ अवाम भी खफा होते हैं और ट्रैफिक का मसला बन जाता है। सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। बड़ी ज़बरदस्त गल्लां इन्हां ने कीतियां ते अल्हम्दुलिल्लाह अज दा पूरा प्रोग्राम में अगर वाइंड अप करा तो माशाल्लाह मैनूं बड़ा ही बेहतरीन लगे कि आवाम दी गल भी तुहाडे सामने होई, आवाम दे नाल बाइकिया के हवाले नाल अगर पैकेज करा तो लोग मजदूरियाँ करते पे, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो करते पे, लेकिन मैंने जड़ी ट्रैफिक के हवाले नाल जितने प्रॉब्लम हैं तुहाडे जितने काम हैं वो एक तरफ, लेकिन अगर तुसी ट्रैफिक एहलकार की गल्लां सुनो तो उन्होंने सारियां गल्लां टू द पॉइंट कीती हुई हैं, उन्होंने कोई गल जी गल नहीं की, उन्होंने तुहानूं क्या करो अपने कानून की पासदारी करो, क्योंकि कल नू डिजिटल सिस्टम आंदा पिया, कैमरे हर जगह ते लगने वाले 50-60% लग चुके हैं। कल नू जदों ई चालान आसी तो तुहाने अगर सीट बेल्ट नहीं लिता होया तुहाडे डायरैक्ट तुहानूं परचा, तुहाडी पिक्चर खिंची जसी, तुहानूं ईमेल हो जसी, तुहाडे कार दे विचकार फाइन तुहानूं दिता जसी, तो आपनूं आदत बनाओ। दूई गल है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी ये चीज़ अच्छी है कि तुसी सीट बेल्ट पाओ। तीसरी ये गल है कि अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल मैंने गल भी देखी है कि एक मर्द जड़ा वे हालात जिस तरीके नाल भी हो अपने कार की मजबूरी वसे कमाने वसे वो कारों निकलता है,
اور 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بائک تے بیٹھ دے پاویں کمر درد ہوئے گرمی ہوئے بارش ہوئے اپنے کار وسے کماندا ہے. اس طرح عورت نو بھی چاہیے کہ اپنے کار دے وچکار اپنے مرد دی عزت کرے. عورت نو بھی چاہیے ایک بندہ تھکا ہویا آوے تو اسے وسے مسائل نہ بڑھاویں بلکہ اسے وسے آسانیاں پیدا کرے. تے اج دے پروگرام سے امید کر رہا توانے بہت کچھ سیکھا ہو سی. توانے مختلف لوگاں دی جڑی میں تانوں بتانا وا کہ انہاں دی کہانیاں تے ہر بائک والے دی اپنی کہانیاں جتھے بھی جاؤ انہاں نال پیسیاں تے لانجے نہ کرو بلکہ انہاں نال وسے آسانیاں پیدا کرو. کسی نو 50 روپے 100 روپے زیادہ دے دسو تے اللہ تعالیٰ تواڈے کماں دے وچکار تواڈی روزی دے وچکار اللہ تعالیٰ برکت پاسی. ٹریفک دے مسائل دے حوالے نال ہر بندہ آپ ہی اگر قانون فالو کرے نا تے کوئی مسئلہ نہیں گا. سانو دوئے تے انگلی نہیں چکنی چاہیے کہ تو صحیح نہیں کرنا پیو. اسی لوگ لائن ڈسپلن دا خیال نہیں کرنے ہیں. دعا ایک بندہ غلط جگہ تے پارکنگ کر دے اسی بھی ٹک کر کے اسے پیچھے پارکنگ کر دینے. یہ گل غلط ہے. پارکنگ نو پارکنگ تے لگاؤ. بائک لے کے آندے ہو تے بائک لیاؤ. گڈی نہ کڈو نا اگر گڈی دی ضرورت نہیں تے نہ کڈو. پیٹرول بچاؤ. اپنے وسے بھی فیملی نو نال نہیں جاندے ہو تے ود لے کے جاؤ. تے امید کرنا اج دا پروگرام تانوں اچھا لگو سی. اپنا فیڈ بیک دینا کدی بھی نہ بھولنا. تہاڈا فیڈ بیک میرے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان نعمان رؤف نو اجازت رہو. خوش رہو. جتھے بھی دیکھتے پے لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو تے اپنی دعاواں دے وچکار سانو یاد کرو. اللہ حافظ.